Yes. Okay. This is my title slide. Is title slide visible, Sanjeevni? What about my voice? Is it okay? Okay, thank you so much. And now you can switch off your mic. I am going to start the lecture number 6. Okay, and in next 2 lectures we will finish this unit. Or this is our third last test lecture. This is lecture number 6, unit number 3, classical mechanics, and today's date is 22nd January 2022. Okay, in last lecture we have seen one equation that is called Hamilton's Jacobi equation. Okay, and that equation is the contribution, both the joint contribution of Hamilton and Jacobi, दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर वो इक्वेशन दिया था. ओके, आज जो हम पढ़ेंगे वो सिर्फ जैकोबी रिलेटेड, जैकोबी ने जो इंटीग्रल फंक्शन दिया वो फंक्शन को आज हम पढ़ने वाले हैं. ठीक है, सो टुडे वी विल सी जैकोबीज इंटीग्रल फंक्शन, and in this derivation is completely based on the Lagrangian function and Lagrange's equation. If you know the Lagrangian function and Lagrange's equation, then you can easily derive the Jacobi's integral function from it. Okay, and you know that Lagrangian function means L, capital L is the Lagrangian function, and you know that Lagrangian function is depends on 3 things. Okay, Lagrangian function is depends on 3 things. Which are they? First is qk, that is generalized coordinate. Second is qk dot, generalized velocity, and third one is time. You know that. I already told you Lagrangian function is the function of qk dot and time. Okay, so you know that generally Lagrangian function of the system is given by, and it is the function of qk dot and time t. Because when you see the Lagrange's equation, what is Lagrange's equation? D by dt del L by del qk dot minus del L by del qk is equal to 0. So उस इक्वेशन में क्या है? qk भी है, qk dot भी है और टाइम भी है. तो it means that Lagrangian's function, that is L, depends on qk dot and time t. qk means generalized coordinate, qk dot generalized velocity, and t is time. Okay. And if I want to differentiate this equation, if I differentiate this equation with respect to time t, okay, if suppose I differentiate this equation with respect to time t, okay, with respect to time, so what is the differentiation? Okay, I already told you how to differentiate this type of equation or this type of function. Left hand side just dl by dt, nothing much or nothing more about that. Left hand side easy differentiation, dl by dt. But what about the right hand side? First of all, you have to partially differentiate L with respect to qk, then fully differentiate qk with respect to time. It means that del L by del qk dqk by dt plus, then differentiate L with respect to qk dot partially, plus del L by del qk dot, then dqk by dt. Very easy. And lastly differentiate L with respect to t, del L by del t. इस तरीके से डिफरेंशिएशन करते हैं. अगर ऐसा फंक्शन रहता है तो मैंने बताया था कैसे करते, ये बार बार बता रहा हूं, हर बार बता रहा हूं, बार बार बता रहा हूं. ठीक है, तो कैसे फिर से एक बार बता रहा हूं, दैट इज आई एम टेलिंग वंस मोर. ओके, so first of all, left hand side no problem, differentiate with respect to t means left hand side dl by dt is equal to, right hand side first of all partially differentiate L with respect to qk, del L by del qk, okay, then dqk by dt, fully differentiate qk with respect to t, okay, del L by del qk dqk by dt plus, then partially differentiate L with respect to qk dot, del L by del qk dot into dqk by dt, fully differentiate qk with respect to t, dqk by dt, dqk dot by dt, then lastly plus differentiate partially L with respect to t, so del L by del t. ओके, तो इस तरीके से डिफरेंशिएट करने के बाद इक्वेशन कैसा दिखेगा? डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 विथ रिस्पेक्ट टू टी, सो वी विल गेट समेशन. देखो समेशन मैंने इसमें ऐड कर दिया एक्स्ट्रा में, समेशन ओवर के एक्स्ट्रा में ऐड कर दिया. व्हाई? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द कंप्लीट सिस्टम, वी आर टॉकिंग अबाउट द होल पार्टिकल्स present in the system, because we are talking about the
total number of particles in the system. So that's why I have added the summation. Okay, summation को भूल जाओ तो कैसे किया, देखो del L by del Q के डॉट del L by del Q के डॉट dq के by dt dq के by dt प्लस del L by del Q के डॉट del L by del Q के डॉट dq के by dt dq के डॉट by dt प्लस del L by del t. तो इस तरीके से किया और दो समेशन मैंने इसलिए ऐड किया, summation over I have added the summation over k because the value of k is equal to 1 to n. We are talking about the whole system, we are talking for all the particles present in the system. That's why I have added the summation. So this is the equation number 2. Very easy. Summation मैंने ऐड कर दिया एक्स्ट्रा में, यहाँ पे एक summation over k, यहाँ पे एक समेशन ओवर के एक्स्ट्रा में ऐड किया बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑल पार्टिकल्स इन द सिस्टम एंड द k इज इक्वल टू 1 टू n. k इज इक्वल टू 1 मतलब एक पार्टिकल, k इज इक्वल टू 2 मतलब दो पार्टिकल्स, k इक्वल टू 3 मतलब 3 पार्टिकल्स, k इक्वल टू n मतलब n पार्टिकल्स. ओके, सो इस तरीके से डिफरेंशिएशन किया. डिफरेंशिएशन फिर से एक बार बताऊंगा, डेल एल बाय डेल क्यू के, डेल एल बाय डेल क्यू के डी क्यू के बाय डी टी, डी क्यू के बाय डी टी प्लस डेल एल बाय डेल क्यू के डॉट डेल एल बाय डेल, पहले पार्शियल डेरिवेटिव लेना है फिर फुल डेरिवेटिव लेना है, डेल एल बाय डेल क्यू के डॉट डेल एल बाय डेल क्यू के डॉट डी क्यू के डॉट बाय डी टी, डी क्यू के डॉट प्लस लास्ट में डेल एल बाय डेल टी, डेल एल बाय डेल टी. वेरी इजी. ओके, एंड आई हैव एडेड एक्स्ट्रा टू समेशन, समेशन ओवर के, समेशन ओवर के. वाई? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल द पार्टिकल्स. और लेफ्ट हैंड साइड में इजी, लेफ्ट हैंड साइड में एल है तो डी एल बाय डी टी कंप्लीट डेरिवेटिव. ओके, सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 2. ओके, इक्वेशन नंबर 2 अगर तुमको पता है, इस तरीके से तुमने डिफरेंशिएशन कर लिया तो इजीली तुम जैकोबीज इंटीग्रल फंक्शन निकाल सकते हो. ओके, सो ये है इक्वेशन नंबर 2. नाउ यू नो दैट व्हाट इज लैग्रेंजियस इक्वेशन ऑफ मोशन. व्हाट इज लैग्रेंजियस इक्वेशन ऑफ मोशन? यू नो दैट लैग्रेंजियस इक्वेशन ऑफ मोशन इज दिस वन. दिस वन इज द लैग्रेंजियस इक्वेशन ऑफ मोशन. वेरी इजी. d by dt del L by del q k dot minus del L by del q k is equal to 0. This is the Lagrange's equation of motion. 10 बार से सेकेंड यूनिट से मैं यही चिल्ला रहा हूँ, Lagrange's equation of motion, Lagrange's equation of motion, Lagrange's equation of motion. तो चिल्ला चिल्ला के तुम्हारे जो कान में वो फिट हो गया होगा, तुम्हारे दिमाग में फिट हो गया होगा कि Lagrange's equation of motion है क्या, d by dt del L by del q k dot minus del L by del q k equal to 0 and q k dot means generalized velocity, L is the Lagrangian function that is t minus v and q is the generalized coordinate and t is the time. Very easy. So if suppose in this equation ये टर्म को मैंने राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया, if I shift this term to right hand side तो ये इधर प्लस हो जाएगा. Okay, now I am shifting this term on right hand side तो I will get d by dt del L by del q k dot is equal to del L by del q k. इस टर्म को मैंने लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया तो क्या हो जाएगा, d by dt del L by del q k dot is equal to del L by del q k. और इसको मैं अभी सीधा लिखूंगा, सीधा भी लिख सकते del L by del q k is equal to d by dt del L by del q k dot. वेरी इजी. इसको ऐसा भी a इक्वल टू b को b इक्वल टू a लिख सकते. वेरी इजी. सपोज ये a है, ये b है, a इक्वल टू b कैन बी रिटन एज b इक्वल टू a. नो चेंज. कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं. So d by dt del L by del q k dot is equal to del L by del q k can be written as del L by del q k is equal to d by dt del L by del q k dot. Very easy. So ऐसा क्यों किया मैंने? लैग्रेंजियस इक्वेशन में से उस टर्म को मैंने राइट हैंड साइड को शिफ्ट किया और फिर इस तरीके से del L by del q k is equal to d by dt del L by del q k dot हमको मिला. ऐसा क्यों किया? Because I want to put the value of del L by del q k in equation number 2. Okay, so del L by del q k means d by dt del L by del q k dot. Okay, del L by del q k means d by dt del L by del q k dot. Now I can put the value of del L by del q k, putting the value of del L by del q k from above equation to equation number 1, equation number 2. del L by del q k की जगह मैं d by dt del L by del q k dot रख सकता हूं, तो इक्वेशन नंबर 2 में मैं del L by del q k को रिप्लेस करूंगा d by dt del L by del q k dot से. वेरी इजी. सो व्हाट इज इक्वेशन नंबर 2? फिर से इक्वेशन नंबर 2 दिखाता हूं. ओके, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 2 में देखो del L by del q k है, del L by del q k है, तो दिस del L by del q k, just look at my mouse arrow, so this del L by del q k I will replace by that. Okay, so del L by del q के जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, d by dt del L by del q k dot. So
okay, in place of this I will replace that term. Okay, so after replacing that I will put the value of del L by del QK from above equation in equation number 2. so after putting I will get dl by dt is equal to summation over के जैसा है, ये देखो ये वैल्यू रख दिया, del L by del QK की जगह मैंने d by dt del L by del QK डॉट रखा, d by dt del L by del QK डॉट, बाकी एज इट इज, बाकी कोई चेंज नहीं करूंगा, बाकी एज इट इज. सो dl by dt is equal to summation over k d by dt del L by del QK डॉट d. ये देखो del L by del QK था यहाँ पर, तो यहाँ पे अभी ये वैल्यू रख दिया, del L by del QK की जगह d by dt del L by del QK डॉट रखा. सो इन प्लेस ऑफ del L by del QK I have put d by dt del L by del QK डॉट. So the equation becomes summation over k d by dt del L by del QK dot into dqk by dt plus summation over k, ये जैसा है वैसा ही रहेगा सेकंड टर्म, del L by del QK dot and dqk dot by dt plus del L by del t. ओके, इस तरीके से मैंने del L by del QK की जगह ये टर्म रख दिया. ओके, नाउ अभी मैंने ये जो अंडरलाइन की है ये टर्म, ओके, ये टर्म जो अंडरलाइन की है, ये फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म मिलके ये जो टर्म दिख रही है d by dt del L by del QK dot into dqk by dt plus del L by del QK dot dqk dot by dt. तो ये टर्म जो होती है, ये जो अंडरलाइन की हुई, ओके, यू सी दिस अंडरलाइन टर्म इज नथिंग बट द डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन. कैसे? ये जो टर्म है, okay, this underlined term is nothing but the derivative of product of two functions. So which functions? If I take, just look at, okay, just forget this equation, this is suppose equation number 3 और जो भी है. So this term, this underlined term is nothing but the product of two function, product of derivative of two functions. So which are they? Suppose I will take the derivative of these two functions, product, del L by del QK dot is one function and QK dot is other function. Okay, suppose I will take the derivative of product of these two functions. First function is del L by del QK dot and second function is QK dot. अगर मैं इन दोनों टर्म्स का, इन दोनों फंक्शन के प्रोडक्ट का डेरिवेटिव लेता हूं, तो जो मैंने पिछले इक्वेशन में अंडरलाइन जो की थी ना टर्म, वो दोनों टर्म मेरे को मुझे मिलेंगे. ओके, दैट आई हैव अंडरलाइन दैट टर्म्स, वी विल गेट द टर्म्स व्हेन आई टेक द डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ दीज टू फंक्शन. सो हाउ इट कम्स? ओके, जस्ट आई विल शो हाउ इट कम. ओके, सो d by dt, if I take the product, if I take the derivative of product of these two function, first function is del L by del QK dot and second function is QK dot. So you know that what is the product rule of derivative? If I take the derivative of product of these two function, first function is del L by del QK dot and second function is QK dot. If I take the derivative, I will use product rule. So what is product rule? First function as it is, del L by del QK dot. Take the derivative of second function, dqk dot by dt plus second function as it is, QK dot. Then take the derivative of first function, d by dt del L by del QK dot. Very simple. This is the product rule. If suppose there is the derivative of u and v, first u derivative of v plus v derivative of u. इस तरीके से first function को as it is, derivative of second function plus second function as it is, derivative of first function. उसी तरीके से if it is first function is del L by del QK dot, second function is QK dot. If I take the product of these two if I take the derivative of product of these two function, first function as it is, del L by del QK dot as it is, take the derivative of QK dot, dqk dot by dt plus second function as it is, QK dot as it is, take the derivative of first function, d by dt del L by del QK dot. So this is the product rule of derivative, and using product rule of derivative we can easily find out the derivative of product of these two function. First function is del L by del QK dot and second function is QK dot. Okay, now in next step QK dot can be written as dqk by dt. तो ये QK dot की जगह क्या लिखूंगा मैं? dqk by dt. So very easy, same d by dt. If I take the derivative of product of these two function, del L by del QK dot and QK dot, I will get del L by del QK dot dq into dqk dot by dt plus
क्यू के डॉट की जगह क्या लिख सकता हूं, डी क्यू के बाय डी टी, बिकॉज डॉट इज नथिंग बट द टाइम डेरिवेटिव एंड क्यू के डॉट कैन बी रिटर्न एज डी क्यू के बाय डी टी, टाइम डेरिवेटिव ऑफ क्यू के डी डी टी। तो ये जो देखो, तो जो ये अंडरलाइन किया था ना मैंने टर्म, ओके, आई हैव अंडरलाइन दैट टू टर्म्स, सो दीज आर दी टू सेम टर्म्स, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, ये दोनों टर्म जो मैंने अंडरलाइन किया था सेम टर्म्स हैं। कैसे, ये देखो इक्वेशन नंबर देखो, ये देखो समेशन को छोड़ दो, समेशन को छोड़ दो, तो ये जो दोनों टर्म है डी बाय डी टी डेल एल बाय डेल क्यू के डॉट डी क्यू के बाय डी टी, ये देखो यहां पर भी है वो टर्म डी, ये देखो डी बाय डी टी डेल एल बाय डेल क्यू के डॉट डी क्यू के बाय डी टी है ये टर्म, ओके। और देखो दूसरी टर्म भी दिखा रहा हूं, ये है एक टर्म, सेकेंड टर्म क्या है, डेल एल बाय डेल क्यू के डॉट डी क्यू के डॉट बाय डी टी, सेम देखो यहां पर भी वो है डेल एल बाय डेल क्यू के डॉट डी क्यू के डॉट बाय डी टी। तो इट मीन्स दैट जो मैंने अंडरलाइन किए थे दो टर्म्स, उसका मीनिंग क्या होता है, दिस, इफ आई टेक द डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ दीज टू फंक्शंस आई विल गेट दोज अंडरलाइन टर्म्स, I will get those underlined terms, okay, if I take, so in place of those underlined term I will put this value, because वो जो अंडरलाइन टर्म है, ये एक और दो टर्म जो अंडरलाइन टर्म है, उसका मीनिंग क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ दिस टू फंक्शन, इफ आई टेक डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ दिस टू फंक्शन आई विल गेट दोज अंडरलाइन टर्म। सो अंडरलाइन टर्म की जगह मैं ये रख सकता हूं, ओके, ये जो टर्म्स है फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म, वो है अंडरलाइन किए हुए टर्म्स जो मैंने नेक्स्ट इक्वेशन में, लास्ट इक्वेशन में बताया, जो अंडरलाइन किए हुई टर्म्स है फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म, इसके जगह पे मैं प्रोडक्ट ऑफ डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ दैट टू फंक्शंस आई कैन पुट, ओके, सो वेरी इजी, ओके। सो ये जो टर्म है, ये अंडरलाइन की हुई टर्म्स है फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म, तो इन दोनों की जगह मैं ये रख सकता हूं इक्वेशन नंबर 3 में, सपोज दैट इज इक्वेशन नंबर 3। सो यूजिंग दिस इक्वेशन इन अबाउ इक्वेशन नंबर 3, तो इक्वेशन नंबर 3 में जो अंडरलाइन की हुई टर्म है ये वाली, इसकी जगह पे मैं क्या रख सकता हूं, डी बाय डी टी डेल एल बाय डेल क्यू के डॉट इंटू क्यू के डॉट, बिकॉज द डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ दीज टू फंक्शन इज दोज टर्म्स, दोज अंडरलाइन टर्म्स, ओके। So using the putting the value of these, okay, in equation number 3, okay, अंडरलाइन टर्म की जगह, अंडरलाइन में ये दो टर्म्स है फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म, इन दोनों टर्म की जगह मैं ये रख सकता हूं, ओके। सो इन पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 3, तो आई विल गेट डीएल बाय डी टी, अंडरलाइन टर्म थे दो टर्म की जगह मैंने एक ही टर्म रखा, वहां पे ये वाली डेल एल बाय डी बाय डी टी, डेल एल समेशन जैसा है वैसा रहेगा, डी बाय डी टी डेल एल बाय डेल क्यू के डॉट इंटू क्यू के डॉट प्लस जहां पे डेल एल बाय डेल टी है वैसा रहेगा। देखो फिर से एक बार बता रहा हूं, ये जो अंडरलाइन टर्म है, ये अंडरलाइन टर्म्स है डी बाय डी टी डेल एल बाय डेल क्यू के डॉट डी क्यू के, ये इक्वेशन नंबर 3 है, सपोज डी बाय डी टी डेल एल बाय डेल क्यू के डॉट इंटू डी क्यू के बाय डी टी प्लस डेल एल बाय डेल क्यू के डॉट डी क्यू के बाय डी टी, ये जो दो टर्म्स है, these two terms is nothing but the product derivative of product of two function। so ये जो अंडरलाइन टर्म्स है, ये फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, उसके जगह मैं वो रख सकता हूं, तो वो रखने के बाद क्या आएगा, डीएल बाय डी टी डी बाय डी टी द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, समेशन तो रहेगा प्लस डेल एल बाय डेल टी, ओके। तो ये दो टर्म्स है, दीज अंडरलाइन टू टर्म्स इज नथिंग बट द प्रोडक्ट, नथिंग बट द डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, ओके। सो अंडरलाइन टर्म की जगह मैं ये रख सकता हूं, बिकॉज इफ आई टेक द डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ दीज टू फंक्शन आई विल गेट दोज अंडरलाइन टर्म्स, दोज अंडरलाइन टर्म्स, ये सेम टर्म्स है फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म, सेम टर्म्स है जो उस इक्वेशन में थी, तो वो दोनों टर्म की जगह मैं एक टर्म रख सकता हूं, ये वाली, ओके। सो आफ्टर पुटिंग the value, okay, the value of these underlined term, this is nothing but d by dt del l by del q k dot into q k dot, okay, after putting this, तो वो दोनों अंडरलाइन टर्म की जगह, ये फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, ये दोनों अंडरलाइन टर्म की जगह मैंने ये टर्म रख दिया, बिकॉज दैट इज नथिंग बट द डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। सो आफ्टर पुटिंग दिस, द इक्वेशन नंबर 3 बिकम dl by dt, जैसा है वैसा रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू उस अंडरलाइन टर्म की जगह, ये दो अंडरलाइन टर्म्स थे वहां पर, उसकी जगह रखा मैंने समेशन तो रहेगा, समेशन ओवर के डी बाय डी टी डेल एल बाय डेल क्यू के डॉट इंटू क्यू के डॉट डेल एल बाय डेल क्यू के डॉट इंटू क्यू के डॉट प्लस आखिरी टर्म जैसी है वैसी रहेगी डेल एल बाय डेल टी, इक्वेशन नंबर 3 की, वेरी सिंपल। सो वो दो टर्म्स जो थे अंडरलाइन टर्म्स, वो दोनों टर्म्स ये सेम है, इट मींस दैट दो अंडरलाइन टर्म्स थे, दैट इज द आंसर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डेरिवेटिव, प्रोडक्ट ऑफ डेरिवेटिव ऑफ दिस टू फंक्शंस, ओके, वेरी इजी।
तो वो जो अंडरलाइन टर्म की जगह मैंने ये वाली टर्म रख दिया, बिकॉज दीज टू टर्म्स इज नथिंग बट दिस. ओके, सो समीशन ओवर के डी बाय डी टी डेल एल बाय डेल क्यू के डॉट इंटू क्यू के डॉट प्लस डेल एल बाय डेल टी. वेरी सिंपल. नाउ हियर नाउ आई विल इंटरचेंज डेल एल बाय डेल टी को लेफ्ट हैंड साइड में और डी एल बाय डी टी को राइट हैंड साइड में लेके जाऊंगा. अब देखो, ये जो डेल एल बाय डेल टी है उसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दूंगा तो माइनस हो जाएगा. ये डी एल बाय डी टी को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर जाऊंगा तो माइनस होगा. तो इसको मैं लेफ्ट में लेके जाऊंगा और डी एल बाय डी टी को राइट में लेके जाऊंगा. तो आफ्टर डूइंग दिस, देखो डी डेल एल बाय डेल टी को लेफ्ट हैंड साइड में लेके गया तो माइनस हो गया, माइनस डेल एल बाय डेल टी. डी एल बाय डी टी को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करूंगा तो माइनस डी एल बाय डी टी. ओके, जस्ट आई एम इंटरचेंजिंग द टर्म्स. ओके, interchanging the terms means just I am shifting del L by del T to left hand side and dl by dt to right hand side. Okay, तो इसको left hand side में लेके जाऊंगा तो माइनस हो गया, माइनस del L by del T. dl by dt को right hand side में लेके जाऊंगा तो हो गया माइनस dl by dt. वेरी सिंपल. अब देखो यहां पर d by dt यहां पर भी है, d by dt यहां पर भी है. ओके, just look at this term. d by dt is here in the first term, d by dt here in the second term. Okay, so d by dt I can take common out of the summation. So d by dt यहां पर भी है, d by dt यहां पर भी है, उसको समेशन के बाहर कर दूंगा तो क्या आएगा, d by dt कॉमन समेशन ओवर के डेल एल बाय डेल क्यू के डॉट इंटू क्यू के डॉट माइनस एल. d by dt और d by dt सेकेंड टर्म में से, d by dt फर्स्ट टर्म में से आई विल टेक कॉमन. ओके, सो आफ्टर टेकिंग d by dt कॉमन, सो माइनस डेल एल बाय डेल टी थी, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में वैसा ही d by dt कॉमन करने के बाद समीशन के अंदर क्या है, समीशन ओवर के डेल एल बाय डेल क्यू के डॉट इंटू क्यू के डॉट माइनस एल. ओके, डी बाय डी टी को कॉमन ले लिया तो दिस इज द इक्वेशन नंबर 4. फिर से बता रहा हूं, देखो जस्ट लुक एट दिस इक्वेशन, जस्ट लुक एट दिस इक्वेशन. डी बाय डी टी इज हियर, डी बाय डी टी इज हियर, आई एम टेकिंग डी बाय डी टी कॉमन आउटसाइड द समीशन. सो डी बाय डी टी आउटसाइड द समीशन लूंगा तो क्या बचेगा अंदर, समीशन ओवर के इन द ब्रैकेट डेल एल बाय डेल क्यू के डॉट इंटू क्यू के माइनस, यहां से डी बाय डी टी कॉमन लिया तो यहां क्या बचा एल. सो डी बाय डी टी कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में क्या बचेगा, समेशन ओवर के डेल एल बाय डेल क्यू के डॉट इंटू क्यू के डॉट माइनस एल. ओके, उसी तरीके से डी बाय डी टी कॉमन लिया तो अंदर बचा ब्रैकेट में समेशन ओवर के डेल एल बाय डेल क्यू के डॉट इंटू क्यू के डॉट माइनस एल. दिस इज द इक्वेशन नंबर 4 और लेफ्ट में ये है माइनस डेल एल बाय डेल टी. अब ये ब्रैकेट की वैल्यू देखो, ये ब्रैकेट के अंदर जो है ये बड़ा ब्रैकेट. ओके, जस्ट लुक एट the term inside the big bracket, inside large bracket. So this is the large bracket. Inside this bracket there is a term summation over k del L by del q k dot into q k dot minus L. Now look at this. L means t minus v. So L means t minus v मतलब एनर्जी का डिफरेंस, तो ये भी एनर्जी हुआ. L is nothing but kinetic energy minus potential energy. q k dot is velocity, generalized velocity. Okay, L means kinetic energy minus potential energy. L is equal to T minus V. So bracket के अंदर जो term है, this term is dependent on energy. Depend on energy because L is nothing but the kinetic energy minus potential energy. Q k dot is velocity. Okay, so velocity energy velocity पे भी depend है. L क्या है, T minus V. तो अंदर का जो ब्रैकेट के अंदर L क्या है, T माइनस V. अंदर जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है दैट डिपेंड्स ऑन एनर्जी. ओके, सो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है द लार्ज ब्रैकेट, जस्ट सी द लार्ज ब्रैकेट. इनसाइड दिस लार्ज ब्रैकेट समेशन ओवर के del L by del q k dot into q k dot minus L. L is nothing but T minus V. Q k dot is velocity. It means if L is T minus V, L is related to the energy. So the term inside the bracket is depend on the energy. So term inside the bracket is also called energy function. अब याद रखो, ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है, बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है, इनसाइड दिस बिग ब्रैकेट देयर इज अ टर्म समेशन ओवर के डेल एल बाय डेल क्यू के डॉट इंटू क्यू के डॉट माइनस एल. तो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है वो एनर्जी पे डिपेंड है, इसलिए इसको एनर्जी फंक्शन बोलते हैं. द टर्म इनसाइड द ब्रैकेट इन इक्वेशन नंबर 4 इज कॉल्ड term inside the large bracket, term inside this big bracket is also called energy function and it is denoted by small h. Okay, the quantity of equation number 4 in the bracket is called energy function and it is denoted by small h.
तो ये देखो ब्रैकेट के अंदर, बड़े ब्रैकेट के अंदर जो क्वांटिटी है, ये पूरी क्वांटिटी समेशन ओवर के डेल एल बाय डेल क्यू के डॉट इंटू क्यू के डॉट माइनस एल, the big quantity in the bracket, that is nothing but the energy function. Why it is energy function? Because it depends on the energy and it is denoted by small h. स्मॉल h से डिनोट करते हैं. तो ये ब्रैकेट की टर्म को हम कैसे डिनोट करते हैं? स्मॉल h. दस स्मॉल h नथिंग बट समेशन ओवर के, ये यहाँ पे क्या चाहिए, ब्रैकेट h इज नथिंग बट समेशन ओवर के डेल एल बाय डेल क्यू के डॉट माइनस एल. तो ये जो ब्रैकेट के अंदर की टर्म है दैट इज नथिंग बट स्मॉल h. सो ये ब्रैकेट के अंदर की टर्म को मैं स्मॉल h बोलूंगा. स्मॉल h मतलब दैट इज डिपेंड ऑन एनर्जी, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एनर्जी फंक्शन. सो ये ब्रैकेट की बड़ी टर्म को मैं h से रिप्लेस कर सकता हूं, स्मॉल h. तो अब इक्वेशन क्या हो गया? इक्वेशन नंबर 4 बिकम्स डेल एल बाय डेल टी इज इक्वल टू डी एच बाय डी टी. तो ये ब्रैकेट की जो बड़े ब्रैकेट के अंदर की टर्म्स है उसको एनर्जी फंक्शन बोलते हैं. इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल h. तो इसकी जगह मैं क्या रखूंगा? स्मॉल h. So now I will get minus del L by del T dH by dt. ये बड़ी जो टर्म है उसको h बोलूंगा, स्मॉल h. तो ये इक्वेशन नंबर 4 बिकम माइनस del L by del T is equal to dH by dt. This is suppose equation number 6 and this is from equation number 4. This is from equation number 4. Okay. So minus del L by del T minus del L by del T is equal to dH by dt. dH by dt. सो ये जो ब्रैकेट के अंदर की टर्म है इसको बोलते हैं एनर्जी फंक्शन और उसको डिनोट करते हैं स्मॉल h से. तो ये ब्रैकेट की बड़ी टर्म्स को मैंने स्मॉल h बोल दिया. तो ये इक्वेशन कैसे बन जाएगा? माइनस डेल एल बाय डेल टी. इक्वेशन नंबर 4 बिकम माइनस डेल एल बाय डेल टी इज इक्वल टू डी एच बाय डी टी. डी एच बाय डी टी, वेरी सिंपल. दिस इज इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4. इस तरीके से बन गया. और h को बोलते हैं एनर्जी फंक्शन और पूरा ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म है उसको बोलते हैं एनर्जी फंक्शन बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द एनर्जी. तो अभी हमारे पास क्या बचा? माइनस डेल एल बाय डेल टी इज इक्वल टू डी एच बाय डी टी. ओके, तो ये इक्वेशन मुझे मिला. अब सपोज करो, सपोज, ओके, आई एम सपोजिंग दैट, ओके, जस्ट आई एम कंसिडरिंग दैट एल इज नॉट द फंक्शन ऑफ टाइम. अगर मैंने बोल दिया कि एल फंक्शन नहीं है, सपोज कर लिया, आई एम कंसिडरिंग द सपोजिशन. ओके, आई एम सपोजिंग दैट, आई एम कंसिडरिंग दैट एल इज नॉट द फंक्शन ऑफ टाइम एक्सप्लिसिटली. एल फंक्शन ही नहीं है टाइम का. अगर मैंने बोल दिया एल फंक्शन ही नहीं है टाइम का एक्सप्लिसिटली, मतलब क्लियरली अगर फंक्शन ही नहीं है एल टाइम का, तो उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम जीरो हो जाएगा. अगर मैंने बोला कि कोई भी चीज अगर टाइम का फंक्शन नहीं है तो उसका टाइम डेरिवेटिव जीरो हो जाता है, पार्शियल टाइम डेरिवेटिव इज जीरो. इफ एल इज नॉट द फंक्शन ऑफ टाइम, एल इज नॉट द फंक्शन ऑफ टाइम, okay, explicitly, then its partial derivative is zero. If I say L is not the function of time explicitly, अगर मैंने बोला कि L टाइम का फंक्शन नहीं है तो डेल एल बाय डेल टी जीरो हो जाएगा. अगर ये जीरो हो गया तो हमारे पास क्या मिलेगा? डी एच बाय डी टी इक्वल टू जीरो. सो सपोज L does not depend on time explicitly. If L is not the function of time, I am supposing that, I am considering that. देखो L टाइम पे डिपेंड होता है, एल टाइम पे डिपेंड होता है, लेकिन यहां पे हम क्या बोल रहे हैं कि एल टाइम पे डिपेंड नहीं है. सपोज करो, कंसीडर करो कि एल टाइम पे डिपेंड नहीं है. सपोज एल डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम एक्सप्लिसिटली. सपोज एल इज नॉट द फंक्शन ऑफ टाइम एक्सप्लिसिटली, सो इट्स पार्शियल डेरिवेटिव जीरो. इट्स पार्शियल डेरिवेटिव जीरो. इफ एल डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम एक्सप्लिसिटली, देन इट्स पार्शियल डेरिवेटिव इज जीरो. डेल एल बाय डेल टी इज जीरो. सो पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 6, पुटिंग इन दस dH by dt is 0 from equation number 6. तो देखो इक्वेशन नंबर 6 क्या है? दिस इज इक्वेशन नंबर 6. अगर मैंने बोला कि L is not the function of time, L does not depend on the time, तो del L by del t 0, ये 0 हो जाएगा. तो अगर ये 0 हो गया तो dH by dt क्या मिलेगा अपने को? 0 मिलेगा. dH by dt अगर 0 है तो h क्या हो जाएगा? कांस्टेंट. ओके, सो इफ L does not depend on, I am considering that L does not depend on time, okay, explicitly, clearly not depend on time, then its partial derivative is zero. If its partial derivative is zero, then from equation number 6 वहां पे del L by del t की जीरो हो जाएगा. तो हमारे पास क्या बचेगा? dH by dt जीरो. और तुमको पता है टाइम डेरिवेटिव किसी चीज का अगर जीरो होता है तो वो चीज क्या होती है? कांस्टेंट. तो h क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा.
अगर डेल एल बाय डेल टी जीरो हो गया तो इक्वेशन नंबर 6 में अगर डेल एल बाय डेल टी जीरो हो जाएगा तो अपने पास क्या बचेगा, डी एच बाय डी टी इक्वल टू जीरो। और अगर डी एच बाय डी टी जीरो, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ एच विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज जीरो। अगर डेरिवेटिव किसी भी चीज का जीरो है तो वो चीज क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। तो एच क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ओके, समझ में आया। अगर एल टाइम पे डिपेंड नहीं है तभी एच कांस्टेंट होगा। इफ अगर उस इक्वेशन में डेल एल बाय डेल टी जीरो हो गया तब डी एच बाय डी टी जीरो होगा और तब मैं बोल सकूंगा कि एच कांस्टेंट है। इट मींस दैट, देखो वो इक्वेशन नंबर 6 बता रहा हूं, दिस इज द इक्वेशन नंबर 6। इफ इन इक्वेशन नंबर 6 डेल एल बाय डेल टी इज जीरो, then I can say that dh by dt zero, then I can say that h is constant. It means if L is not the function of time, L is not depend on the time explicitly, then I can say that dh by dt zero, then I can say that h is constant. Okay, it means that if L does not depend on time, del L by del t zero उस इक्वेशन में हो जाएगा तो हमको क्या मिलेगा, dh by dt equal to zero. It means h constant. तो h constant कब रहेगा, जब L टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा। जब L टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा तब जाके H कांस्टेंट होगा। इसका इनडायरेक्ट मीनिंग क्या हुआ, इफ L डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम देन डेल L बाय डेल टी जीरो, देन आई कैन से दैट dH बाय dt जीरो, देन H विल बी कांस्टेंट। ओके, इफ तो H कांस्टेंट होने की कंडीशन क्या है, जब L टाइम पे डिपेंड नहीं करता तब जाके H कांस्टेंट होता है। H कांस्टेंट होता और H को हम बोलते हैं एनर्जी फंक्शन। अगर H कांस्टेंट हो गया तो उसको हम फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ मोशन भी बोलते हैं। सो अगर इफ लैग्रेंजियन डज नॉट डिपेंड ऑन द टाइम देन एनर्जी फंक्शन इज कांस्टेंट इन मोशन। कांस्टेंट तो H कांस्टेंट होगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ मोशन और इसी को बोलते हैं जैकोबी इंटीग्रल। तो H को जैकोबी इंटीग्रल बोलेंगे कब, जब H कांस्टेंट होगा। और कब H कांस्टेंट होगा, जब लैग्रेंजियन टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा। इफ L डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम then dH by dt zero, then H is constant. It means that if Lagrangian does not depend on time, then energy function is constant of motion. Then energy function is constant. H is what? Energy function. If energy function is constant, then this is one of the first integral of motion और इसी को जैकोबी इंटीग्रल बोलते हैं। अगर H constant है तो उसको जैकोबी इंटीग्रल बोलते हैं और जैकोबी इंटीग्रल कांस्टेंट होता है, H कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो H को एनर्जी फंक्शन बोलते हैं। लेकिन अगर H कांस्टेंट है, L अगर टाइम पे डिपेंड नहीं करता, इफ लैग्रेंजियन डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम then energy function is constant and this is also called Jacobi integral and first integral of motion and we can say that this Jacobi integral H is constant। तो इसी H को मैंने Jacobi integral बोल दिया। पहले H को क्या बोला था, एनर्जी फंक्शन। पहले H को क्या बोला था, एनर्जी फंक्शन। लेकिन अगर लैग्रेंजियन डिपेंड नहीं करता टाइम पे तो एनर्जी फंक्शन कांस्टेंट होता है, उसी को हम जैकोबी इंटीग्रल बोलते हैं। और जैकोबी इंटीग्रल भी कांस्टेंट होता है अगर L डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम। तो ये जो 4 लाइन लिखा है इसमें पूरा का पूरा डेरिवेशन का मीनिंग छिपा हुआ है। If Lagrangian does not depend on time, then the energy function is constant and it is also called one first integral of motion और इसी को हम Jacobi integral भी बोलते हैं। Then I can say that अगर H को मैंने Jacobi integral बोल दिया तो Jacobi integral is constant of motion। Okay, तो ये है। तो जो एनर्जी फंक्शन मैंने लास्ट स्लाइड में H को एनर्जी फंक्शन बोला था उसी को जैकोबी इंटीग्रल बोलते हैं। लेकिन वो कांस्टेंट कब होगा, जब लैग्रेंजियन टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा तब जाके H कांस्टेंट होगा। तो इसी तरीके से ये है जैकोबी इंटीग्रल फंक्शन। H को ही जैकोबी इंटीग्रल फंक्शन बोलते हैं और H जैकोबी इंटीग्रल फंक्शन कांस्टेंट कब होता है, जब L टाइम पे डिपेंड नहीं करता। तो इस डेरिवेशन में तुमको जो चीज याद रखनी है, सबसे पहली चीज याद रखती है लैग्रेंजियन फंक्शन दैट इज डिपेंड अपॉन क्यूके डॉट इन टाइम। सेकंड तुमको लैग्रेंजियस इक्वेशन याद रखना है और फिर जो तुमको अंडरलाइन की हुई टर्म मिलती है दैट इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ डेरिवेटिव ऑफ टू फंक्शन। ये वाला प्रोडक्ट ऑफ डेरिवेटिव ऑफ टू फंक्शन इज नथिंग बट दिस अंडरलाइन टर्म। जो ये अंडरलाइन टर्म किया था मैंने, ये अंडरलाइन टर्म इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ डेरिवेटिव ऑफ टू फंक्शन। इसकी जगह वो रख देंगे तो हमको जो एनर्जी फंक्शन मिलेगा H दैट इज कॉल्ड जैकोबीज इंटीग्रल और वो इंटीग्रल कांस्टेंट होता है। वेरी सिंपल। तो शॉर्ट में बताऊंगा कि ये देखो L लिया था मैंने
और फिर इसका डेरिवेटिव ले लिया, डेरिवेटिव में समीशन ऐड किया। समीशन क्यों ऐड किया? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द होल सिस्टम ऑफ द पार्टिकल। डेरिवेटिव लेने के बाद ये टर्म आई, ये टर्म लेने के बाद मैंने लैग्रेंजेस इक्वेशन कंसिडर किया और लैग्रेंजेस इक्वेशन में इस वैल्यू को राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया और मुझे मिला द वैल्यू ऑफ डेल एल बाय डेल क्यू के। डेल एल बाय डेल क्यू के की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में रख दिया। ओके, तो ये मिला इतना बड़ा इक्वेशन। और जो ये अंडरलाइन टर्म मिली, दिस अंडरलाइन टर्म इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ नथिंग बट द डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। इन दोनों फंक्शन का अगर डेरिवेटिव लेते हैं तो मुझे अंडरलाइन की हुई टर्म मिलती है, तो अंडरलाइन की हुई टर्म की जगह मैं ये टर्म रख सकता हूं। तो ये टर्म रखने के बाद मुझे ये मिला, डी डी टी कॉमन कर दिया। कॉमन करने के बाद ब्रैकेट के अंदर ये बड़ी सी टर्म मिली हमको, तो ब्रैकेट के अंदर जो बड़ी टर्म मिली उसको बोलते हैं एनर्जी फंक्शन। इसी को आगे चल के हम क्या बोलते हैं? जैकोबी इंटीग्रल। अगर h मिला, ओके, इस तरीके से h अगर उस पर रख दिया और अगर मान लो l इज नॉट द फंक्शन ऑफ टाइम, तो ये टर्म जीरो हो जाएगी, तो dh बाई dt जीरो होगा और h क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। आगे चल के इसी h को हम क्या बोलते हैं? जैकोबीज इंटीग्रल फंक्शन। And Jacobi's integral function, this is also called first integral of motion and this is constant in time when L does not depend on the time, तभी H constant होता है, Jacobi's integral constant होता है। So इस तरीके से आज हमने देखा Jacobi's integral क्या होता है, वेरी सिंपल डेरिवेशन। अगर कोई क्वेश्चन